Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. And this is my third lecture on the same topic, academic writing. And in my previous two lectures, we have started from definitions of academic writing, and we have discussed the significance, the uses, the types, and many important topics which I feel very important to share with you as far as this topic academic writing is concerned. And now in this lecture I'm going to discuss how to get started with academic writing. And in this lecture you will learn the basic rules of academic writing. Okay, in this slide, I want to revise the definition of academic writing. And before discussing the rules, I feel it important to discuss the definition again for your revision. As I told you, that academic writing is a piece of paper that any educational institute assign you for the completion of your degree. So, uh, it is, as the first point, a genre of writing used in all academic fields. So, any university, college, or any other institute assign you a topic, or you choose that topic by yourself, and you have to write a piece of paper in a very formal style for the completion of your degree. Fine. And it is a process of breaking down of ideas with the purpose of presenting information that depicts a clear understanding of certain subject. And here I have also mentioned the definition of academic writing, that academic writing is is the process of presenting ideas in the rational, organized, systematic, reasonable, and logical way. And for your clear understanding, I am going to revise what is rational. Rational is basically that your academic writing should be based on reason and logic. And next one is organized. And in organized, I suggest you that your academic writing should be arranged in systematic way, in coherent way, that it is like the one unit, the unified subject, unified topic, unified structure. Fine. And third one is systematic, that it is done or according to the fixed plan, a system or a methodology should be there. Fine. And then next is reasonable. And reasonable, having the sound judgment and fair and sensible judgment about the subject. And next one is logical. Logical way is means that it should be based on philosophical way, it should be based on reasons. तो स्टूडेंट्स इस स्लाइड में वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एकेडमिक राइटिंग, और प्रीवियस टू लेक्चर्स में आई हैव डिस्कस्ड एकेडमिक राइटिंग इन डिटेल. ठीक है, तो एकेडमिक राइटिंग क्या है? दैट academic writing is a piece of paper जो आपको assign किया जाता है in the form of assignments, in the form of publication, in the form of article, और अभी online classes में you have to attempt your paper in academic way. So वो भी a sort of academic writing है. ठीक है, अगर आपका टॉपिक आपको दिया जाता है एंड और आपको असाइन किया जाता है एक टॉपिक और कहा जाता है कि आप इसके ऊपर असाइनमेंट लिखें, तो वो भी एक एकेडमिक राइटिंग होगा. ठीक है, फॉर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री आप ये देख लें, जो अभी एक प्रोसेस चला हुआ है, एक प्रोसीजर चला हुआ है यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन क्लासेस का, ये भी एक एकेडमिक राइटिंग है. ठीक है, इसमें आपके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, आप उनको नैरो डाउन करते हैं और आपका जो एक क्लियर और सिंपल आपकी एक प्रेजेंटेशन होती है उस टॉपिक के ऊपर, उसके ऊपर आपके व्यूज होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, साइटेशंस होती हैं, तो वो उस तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आप उसको इस तरह से लिखें. ठीक है,
और डेफिनेशन में अगेन आई हैव डिस्कस दैट एकेडमिक राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग आइडियाज। आपके अपने व्यूज पे डिपेंड करता है, बट आपके व्यूज तभी स्ट्रांग होंगे, आपके व्यूज तभी ऑथेंटिक होंगे जब आप उसको किसी न किसी क्रिटिक का, राइटर का, ऑथर का कोई ना कोई आप रेफरेंस देंगे। ठीक है, और ये रैशनल होना चाहिए। रैशनल मीन्स कि लॉजिक बेस्ड होना चाहिए, रीजन बेस्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, यूनिफाइड फॉर्म में होना चाहिए, कि पूरी असाइनमेंट एक टॉपिक लगे। ये नहीं कि टॉपिक कहीं ईस्ट में है और आप कहीं वेस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, और सिस्टमैटिक मीन्स कि वो एक मेथडोलॉजी फॉलो करता हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि हवा में आपने महल बना दिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो डोंट बिल्ड द कैसल इन द एयर, ये कहा जाता है ना आपसे इंग्लिश में। सो रीजनेबल मीन्स दैट हैविंग साउंड जजमेंट, फेयर एंड सेंसिबल। मतलब आपकी जो जजमेंट है वो बहुत फेयर और सेंसिबल होनी चाहिए। अगेन वही बात है कि लॉजिकल वे में होना चाहिए, फिलोसॉफिकल वे में होना चाहिए, आपका क्लियर रीजनिंग होनी चाहिए। तो सारी बातें एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। So here are some basic rules how to get started with academic writing. Academic writing कैसे start की जाए, तो उसके basic rules क्या हैं? तो इस स्लाइड पे कुछ बेसिक रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेकंड आउटलाइन, थर्ड रिसर्च, फोर्थ फर्स्ट ड्राफ्ट, फिफ्थ रिवाइज, सिक्स्थ प्रूफ रीडिंग। इनमें से आई होप बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके माइंड में होंगे, आप उनको कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा उसके बारे में। But in the next slide, I'm going to discuss one by one all the rules in detail. This is the first basic rule of academic writing, brainstorming. Brainstorming को हम उर्दू में जहन लगाना कहेंगे, ठीक है? And in English, it is a type of group discussion or produce ideas or solve problems. So brainstorming in academic writing is the first and foremost step to move forward in your research. क्यों फर्स्ट स्टेप है, क्यों फोरमोस्ट स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है? बिकॉज इट इज अ टेक्निक टू फाइंड गुड आइडियाज। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक आपको मिला है, असाइन हुआ है, उस टॉपिक के ऊपर यू हैव डिफरेंट आइडियाज, यू हैव डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज। ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट में आपके पास वो आइडियाज हैं, बट आपने उन आइडियाज को उन आइडियाज के ऊपर काम करना है। ठीक है, सो एक एफर्ट है टू फाइंड गुड आइडियाज। सब आइडियाज जो हैं वो आपकी असाइनमेंट में पुट करने के काबिल नहीं है, उनमें कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, सब आइडियाज नहीं हम अपनी असाइनमेंट में पुट करते हैं ना। सो you have to make an effort to find a list of ideas for an issue. तो उसकी एक लिस्ट बनाएं, ठीक है, उन आइडियाज की एक लिस्ट बनाएं और फिर देखें, उनको रिलेट करें विद द टॉपिक ऑफ योर असाइनमेंट। एंड दैट इज व्हाई ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ मेथड टू जनरेट आइडियाज टू सॉल्व एनी इशू। ठीक है, जब आइडियाज को आप लिखेंगे तो आपको कुछ और आइडियाज आपके माइंड में आएंगे उसी से रिलेटेड। तो बेसिकली it is the first and foremost step of writing academic writings, and then it is a method to generate ideas to solve an issue, to attempt any topic. ठीक है, the second point, that focus on the statement. It means that you may be given a topic or you choose by yourself, but you have to focus what you are asked for. And before starting, you must clear what you are writing. So you have to focus on the statement. मैं भी अपने स्टूडेंट्स को जब क्वेश्चन देती हूँ इन मिड टर्म और इन असाइनमेंट्स, तो उनको बार बार यही कहती हूँ कि यू हैव टू फोकस ऑन द स्टेटमेंट, आपसे पूछा क्या गया है। क्योंकि जब आपको पता होता है कि अच्छा ये है और आप उसका वर्ड
हु व्हेन क्वेश्चंस पे गौर नहीं करते कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और जस्ट आप वो स्टेटमेंट देख लेते हैं कि अच्छा इस स्टेटमेंट के ऊपर लिखना है, तो मोस्टली ये होता है कि आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होता क्वेश्चन के साथ, जिसकी वजह से आपके काफ़ी मार्क्स डिडक्ट होते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द स्टेटमेंट एंड देन यू हैव टू क्लियर अबाउट योर वर्क. जो आप काम लिख रहे हैं उसमें क्लैरिटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Fine. And next one is logical and to the point. So be logical and be reasonable in your writings. जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, सब पॉइंट्स लिखने के नहीं होते. ठीक है, तो आपको लिस्ट बनानी है, उसमें देखना है कि कौन से लॉजिकल पॉइंट हैं, कौन से ऑथेंटिक पॉइंट हैं जो आप अपनी असाइनमेंट में या अपनी पब्लिकेशन में इंक्लूड करेंगे. ठीक है, सो अपने लॉजिकल पॉइंट्स पे आपने फोकस करना है एंड डोंट बिल्ड द कैसल इन द एयर. कोई हवा में आपने महल नहीं बनाना. तो फिलोसॉफिकल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए जो भी आप लिखें. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज जनरल टू स्पेसिफिक. जो भी आपका टॉपिक है यू विल स्टार्ट योर टॉपिक with journal information and then you you will move to specific direction. जो पूछा गया है आप बात को पहले जनरल एस्पेक्ट में स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिफिक उस पॉइंट पे लेके जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग. In this slide, I'm going to discuss the second important basic rule of academic writing. And a proper outline is very important for academic writing. And as we have discussed in the first point, the brainstorming, we are instructed to make the list of all the points what we have. But in outline, we are going to organize all the ideas, and outline helps us to formulate all the thoughts in our mind. So here we have to focus what our title is demanding and what we are doing, what we are searching, and what our ideas actually are. So here we have to make the subtopics, the subtitles that makes us aware of certain relationship between the topic, subtopic and paragraphs. So here you have to make an outline that shows the relationship of your work in the form of subtopics, subtitles and paragraph, and it must be relevant with your outline. And next point is that organize paragraphs of similar ideas. So first of all our topic and then subtopic or subtitle, then our paragraphs, and then we have to organize all the paragraphs and we give the sequence to all our work in the form of subtopics and in the form of paragraphs, and then rearrange all our material in a sequence. And outline is very important in all process of academic writing, because it helps us to determine the pertinent information to be included in our paper, and it helps us uh, in creating the relevance of information. Pertinent information means the relevant information. In Urdu we say the munasib malumat. So here outline is very important because it helps us to determine the pertinent information that we are including in our paper. सो आउटलाइन में हमने डिस्कस किया कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है एकेडमिक राइटिंग लिखने में, बिकॉज इट फॉर्मुलेट आर थॉट्स एंड ऑर्गेनाइज आर आइडियाज. ये हमारी जो वर्क है, जो हमारे एक सोच चल रही होती है और जो हमारे आइडियाज़ हैं उन सब को फॉर्मुलेट करता है, उन सब को ऑर्गेनाइज करता है.
और इस स्टेप पे जब हम आउटलाइन बना रहे होते हैं, वी हैव टू क्रिएट द सीक्वेंस विद द टाइटल, विद द सब टाइटल, विद द पैराग्राफ और उसके सीक्वेंस पे। ठीक है, आउटलाइन में हमें हमें बार बार इस चीज़ पे फोकस करना पड़ता है, जो हमारा टाइटल है हम उसी के अकॉर्डिंग अपने सब टाइटल्स बनाएंगे और अपने सब टाइटल्स के अकॉर्डिंग ही अपने पैराग्राफ्स में मटेरियल रखेंगे, एंड देन उन पैराग्राफ्स को और उन तमाम मटेरियल को हमने एक सीक्वेंस देना है। And the last point, that an outline helps us to determine the pertinent information to be included in our paper. तो जो भी मुनासिब मालूमात होती है वो इस सीक्वेंस में हमारे सामने आ जाएगी। एक सीक्वेंस जब बनाएंगे तो उसमें हमें ये पता चल जाएगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को फर्स्ट होना चाहिए, इस पॉइंट को सेकंड होना चाहिए और इसको लास्ट पॉइंट होना चाहिए। तो जो वो एक इंफॉर्मेशन की एक, आप ये कहें कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और उसकी तरतीब के लिए भी इम्पोर्टेंट है और उसके मालूमात का जो आपका एक ऑथेंटिसिटी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है आउटलाइन। दिस इज द थर्ड बेसिक रूल ऑफ एकेडमिक राइटिंग, रिसर्च। रिसर्च जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, रिसर्च, दैट इन सेकेंड स्टेप आउटलाइन में आपने एक सब टॉपिक्स बना लिए, पैराग्राफ्स बना लिए, आपके पास एक सर्च मौजूद है ऑफ योर आइडियाज, बट हियर यू आर गोइंग टू रिसर्च, you are going to search again what you have and what you are looking for. So get the information you need. Second step के बाद you are clear that what type of information now you need to complete your dissertation or thesis or assignment. ठीक है, and second point, that focus what your title demands. Research में again you have a diversity of material, आपके सामने a diversity of opinions, आपके पास बहुत ज़्यादा vast material है, then again and again you will focus what your title demands. इस चीज़ पे आपका फोकस नहीं हटना चाहिए, that what your title is demanding from you. ठीक है, एंड देन मेक द सब टॉपिक्स एंड सब टाइटल्स, जो आपके पास है आप उसके सब टॉपिक्स बना रहे हैं, सब टाइटल्स बना रहे हैं, साथ साथ आपकी आउटलाइन के बाद भी जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसके भी आपने सब टॉपिक्स और सब टाइटल्स बनाने हैं, ताकि फोर्थ स्टेप तक आपके पास जो पिछला डाटा है, प्रीवियस डाटा है आउटलाइन तक और रिसर्च का, वो आप मर्ज कर सकें और आपको पता हो कि इस पैराग्राफ में इस सब टाइटल के अंडर मैंने क्या मटेरियल रखा है। ठीक है, एंड देन मेक द पैराग्राफ्स ऑफ सिमिलर आइडियाज, और इन रिसर्च अगेन you are having magazines, न्यूज़पेपर्स, पब्लिकेशंस। रिसर्च हम मैगजीन से करते हैं, न्यूज़पेपर से करते हैं, पब्लिकेशन से करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं ना। सो रिसर्च फ्रॉम बुक्स, पब्लिकेशंस एंड इंसाइक्लोपीडिया, यू कैन हैव लाइब्रेरीज एंड अदर सोर्सेज, इंटरनेट। सो ऑनलाइन बुक्स जो होती हैं वो ई बुक्स कहलाती हैं, एंड ई बुक्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। यू कैन सर्च योर डाटा फ्रॉम ई बुक्स as well. So you can type the keywords of your title and find information. तो आपने वहाँ पे कीवर्ड लिखने हैं जहाँ से भी आप सर्च कर रहे हैं, और आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल फिर उसको सर्च कर सकेंगे। एंड इंटरनेट सोर्सेज जो हैं दैट आर, उसमें भी आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। मेनी सोर्सेज आर फेक, मेनी इंफॉर्मेशन इज फेक, so find the authentic one. This is the fourth basic rule of academic writing, that the fourth rule is first draft. First draft means that you put all material together, all information, all ideas together, and see the data what you have at this level, and you are ready to put all the points together.
आप देख सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज़ को, अपने मटेरियल को, एंड आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट जो है दैट इज द रिफ्लेक्शन of your thought, your ideas and your work as well। जो आपने सबमिट कराना है ये उसका एक रिफ्लेक्शन होगा आपके सामने, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज that you have to evaluate material as if it is enough to fulfill demands of university। आप यहाँ पे एक फर्स्ट ड्राफ्ट में अपने मटेरियल को evaluate कर सकते हैं कि आप को जो इंस्ट्रक्ट किया गया था, आपको जो गाइडलाइन प्रोवाइड की गई थी उसके अकॉर्डिंगली आपका फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो क्या उस डिमांड को फुलफिल कर सकता है जो यूनिवर्सिटी ने जो क्राइटेरिया आपके लिए फिक्स किया है उसकी डिमांड को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट, इफ नीडेड देन सर्च अगेन। This is the time to see the material is sufficient or not. You should go forward or backward to research again। ठीक है, यहाँ पे if needed then search again means कि अगर आप satisfied हैं अपने काम से, अपने मटेरियल से, अपनी इंफॉर्मेशन से, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। तब आप अगला अगला जो आपका स्टेप होगा तब आप उस पे जाएंगे। इफ नॉट, आपका मटेरियल सफिशिएंट नहीं है, आपके कोई आइडियाज इनकम्प्लीट हैं, आपका मटेरियल जो है वो साउंड बेसिस पे नहीं है, सेंसिबल नहीं है, फिलोसॉफिकल नहीं है, आपके मटेरियल में आपको कमी लग रही है, उसकी ऑथेंटिसिटी में, आपके रेफरेंसेस में कुछ भी इशू है, तो आप यहाँ पे ही डिसाइड करेंगे। अगर आपको मटेरियल में कमी लग रही है देन यू विल गो फॉर सर्च अगेन, अगर नहीं देन यू विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। और यहीं पे फर्स्ट ड्राफ्ट में यू हैव टू ऑर्गेनाइज ऑल द डाटा एंड चेक द सीक्वेंस ऑफ ऑल मटेरियल। अपने सीक्वेंस को, अपनी रेलेवेंस को यू हैव टू चेक इट अगेन एट दिस लेवल, ठीक है। एंड last point that your satisfaction is very important for your work। अगर आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं, अपने पॉइंट से, अपने मटेरियल से, अपने सोर्सेज से, देन यू विल गो फॉरवर्ड, ठीक है। तब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अगर आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं है और आपको लग रहा है कि नहीं यू नीड टू सर्च अगेन, तो आप दोबारा रिसर्च पे जाएंगे, ठीक है। In this slide, I'm going to discuss the fifth point of basic rule of academic writing: revision। Revision is very important point in academic writing, and in revision, you must be sure that your ideas are clear in detail, and you are sure that what you are doing is according to the demand of your university or academic institution। So check the cohesion, check that your topic, your first draft is unified, and all the topics, all the subtopics, paragraph, all the material is relevant with the title। So here in the revision, you have to verify the following points. Number one is supporting ideas. Number two is evidence. Number three, examples. And number four, sources। रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है एकेडमिक राइटिंग में, क्योंकि रिवीजन से ही आपको पता चलेगा। आप जितनी दफ़ा अपने एकेडमिक राइटिंग को रिवाइज करेंगे तो आप उतनी ज़्यादा अपनी मिस्टेक्स निकाल सकते हैं, अपनी वीकनेस देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने रिवीजन में अपनी क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ देखनी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, अपना फॉर्मुलेशन देखना है, जो आपने सीक्वेंस सेट किया है अपने पॉइंट्स का, आपने उसको चेक करना है कि जो जो आपसे पूछा गया है, जो आपका टॉपिक है या जो आपकी स्टेटमेंट है, आपका मटेरियल, आपका टॉपिक, सब टॉपिक, आपके पैराग्राफ सब उसी के अकॉर्डिंग है जो आपको इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सिटी ने दी है। आपकी जो गाइडलाइन प्रोवाइड की एकेडमिक राइटिंग के लिए, आपके सारे पॉइंट्स उसी के ऊपर होने चाहिए, बिल्कुल उसके मुताबिक होने चाहिए। सो इन रिवीजन आपको अपने सपोर्टिंग आइडियाज़, अपने जो रेफरेंसेस हैं, ऑथेंटिसिटी है, उसको चेक करना है, अपनी एग्जाम्पल्स को देखना है और अपने सोर्सेज को चेक करना है।
This is the sixth basic rule of academic writing, that is proofreading and editing. Proofreading and editing is very important for the improvement of your academic work because it can create the difference between average work and a better work. So, at this point, we will check the technical side of paper. For example, grammatical errors, repetition, spelling, punctuation error, and the next point is that you have to examine every sentence. The language of your paper needs to be clear and the words need to be chosen. So, the next point, that is tone. A formal tone is used, so you don't use the slang words in your academic paper. The slang words like jargons, abbreviations, or taboos, which we are prohibited to use in our daily life. So these type of words, we should avoid these type of words, and it is mandatory for us to use the formal tone. And next is the variety of styles. So variety of styles enhance our work, and it will give the strength of our points and of all the material. So proofreading or editing very is very important in academic writing, and इस point पे आके we have to check our grammatical errors, the repetition कि एक sentence बार बार repeat ना हो रहा हो, और एक point जिसको हमने start में accept किया है या approve किया है या endorse किया है और आगे जाके हम उसी को negate ना कर रहे हों. So repetition ना हो रही हो, spelling mistakes ना हो, punctuation errors ना हो. सो प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग में हम टेक्निकल साइड जो है अपने वर्क की, हम उसको भी जज करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, और अपने तमाम सेंटेंस जो हमने लिखे होते हैं, अपने सेंटेंस को, उसकी लैंग्वेज को हम दोबारा से इसको देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस हमने कोई गलत मीनिंग में यूज़ ना किया हो और वो क्लियर ना हो, या जो बात हम कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आपकी बहुत लाजमी है. और बात लास्ट जो पॉइंट है हमारा, दैट इज ऑफ स्टाइल, वैरायटी ऑफ स्टाइल्स. और वैरायटी ऑफ स्टाइल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है एकेडमिक राइटिंग में. हमारी फॉर्मल टोन भी होती है और हमारे पास एक स्टाइल, हर राइटर का एक अपना स्टाइल होता है, अपना थीम होता है, अपने वर्ड्स होते हैं जो उसकी पहचान होते हैं. तो स्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप अपनी राइटिंग्स में कोशिश करें कि अपना बहुत एक फॉर्मल स्टाइल रखें और सिंपल रखें और क्लैरिटी रखें. This is the last step in the basic rules of academic writing. This is the final checklist of academic writing where you will go back to the topic or assignment criteria that has been given to you at the time of assignment or topic by your university or academic institute. So here you have to read carefully again all the instructions and evaluate your work according to the instructions one by one, and you will have to measure the length of your academic paper as per the criteria of university. So if you have fulfilled all the instructions, then you have the right type of essay or academic work. So here make your paper shine.